आपको? यस आ रहा सर। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? आप स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? हेलो। यस दिख रही सर। ओके ओके, शैल आई स्टार्ट? यस यस। Okay. Today we are going to discuss regarding that GATE lecture for the communication electronics. In the last lecture, what we have discussed regarding that in communication electronics, we have studied the analog communication and the digital communication. Okay, previously lecture we have discussed or we have studied related to analog communication. Okay, so today we are going to discuss on the base of the topic digital communication. Okay, in the digital communication is one of the part in the communication. Okay, everywhere we are using the digital communication. Why we are using the digital communication? Why we are not using analog communication in the digital form? Okay, but some specific application is occurred for that digital communication and the analog communication. For the specific purpose, for that specific application, we are using the analog communication. Okay, and in digital communication, in that digital form, for example mobile, for example any kind of digital data we have to send from one to many or one to another devices in the digital form. That time we are using the digital communication. Okay, as compared to the analog communication, digital communication is a very secure communication as compared to the analog communication. And also the another parameter is depend on that digital communication. For example, data rate is also high as compared to the analog communication. Signal SNR जिसको बोलते हैं अपन, signal to noise ratio is also more. Then error, whatever maybe the error will be occur during the communication, it may be less as compared to the analog communication. So that purpose we can use the digital communication for the specific application. Okay, we have discussed one by one in the digital communication. Okay, in that digital communication we are using the pulse, different type of a modulation. Okay, different type of a modulation we are using in the digital modulation, and one is the pulse modulation. In that pulse modulation, this pulse modulation is used in a digital communication. Okay, pulse means what? Whatever may be the any kind of a signal along with in the form of 1 and 0. Okay, in the digital form or in the pulse form, this pulse will be given to that digital communication in the form of carrier. Okay, in the form of carrier. Okay, means I am sending my voice. For example, I am sending my voice analog form, but this voice is transmitted along with that digital form. Okay, by using that laptop, by using that any kind of a digital media. Okay, that time we are using the pulses. In that pulses is nothing but your carrier. Okay, in that pulses, this information is transmitted through that modulation. Okay, this pulse in the form of 1 and 0, or another form we can use logic 0 and logic 5. Okay, logic 5 means what? This is a 1 bit, or logic 0 means this is your 1 bit. Okay, this is the क्या बोलते हैं, लॉजिक जीरो को क्या बोलते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि लॉजिक जीरो इज नथिंग बट योर 0 बिट, और लॉजिक 5 इज नथिंग बट योर जिसको अपन वोल्टेज बोलते हैं, 0 वोल्टेज और 5 वोल्टेज. ठीक है, उसको अपन बोलते हैं 1 बिट. ओके, दिस इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0 वी कैन ट्रांसमिट signal in the digital form. Okay, these are the different type of a pulse modulation. In that pulse modulation, having the two types, basically this is the analog pulse modulation and this is a digital pulse modulation. In that analog pulse modulation, for example, having the three main basic सब पार्ट. फॉर एग्जाम्पल PAM जिसको अपन बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जिसको अपन इन शॉर्ट वी कैन से दैट PPM. Okay, these are the three basic sub classification of analog pulse modulation. Okay, and in the digital pulse modulation having the three some basic sub classification. For example, pulse code modulation, DPCM जिसको अपन बोलते हैं differential pulse code modulation, delta modulation, then
एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसको अपन बोलते हैं एडीएम। ओके, इन द थर्ड, आपके थर्ड ईयर में सब्जेक्ट भी था कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारे कम्युनिकेशन जो है मॉड्यूलेशन टेक्निक वी हैव डिस्कस इन दैट CE subject, communication electronics subject. Okay, one by one we have discussed in the pulse modulation. First of all, we are going to discuss pulse amplitude modulation. जैसे अपन ने एनालॉग मॉड्यूलेशन में देखा था, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन. Similarly this kind of information is available in the pulse amplitude modulation. Is the similar to that amplitude modulation, but in that digital modulation we are using the pulse amplitude modulation. Same meaning is here for that pulse amplitude modulation. Means what, whatever the changes will be occur, means which changes occur in that modulation. For example, a modulation in the modulation system in which amplitude of a discrete carrier signal changes according with that instantaneous amplitude of modulating signal. It means इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी तुम्हारा सिग्नल रहता है, विच सिग्नल, डिस्क्रीट कैरियर सिग्नल, मीन्स कौन सा तुम्हारा कैरियर जो सिग्नल रहता है, डिस्क्रीट कैरियर सिग्नल, वो क्या रहता है, चेंजेस होता है, चेंजेस ऑफ एम्पलीट्यूड बराबर अकॉर्डिंग विद दैट मैसेज सिग्नल. जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन सिग्नल रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और रिमेनिंग पैरामीटर, विच पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कंसिडर किया पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कंसिडर करता हूँ तो रिमेनिंग पैरामीटर कौन से होते हैं मेरे, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रहते हैं, वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, बट इन द एनालॉग फॉर्म, बट इन द एनालॉग कम्युनिकेशन. बट here in the pulse amplitude modulation only the changing of a carrier of a amplitude in the form of pulses. Okay, this is a pulse amplitude modulation. This is a how to generate the pulse amplitude modulation. Means this wave is generated by using that this block diagram, or this we can say that this is a circuit diagram, we can say that. Okay, by using that block diagram we can generate the pulse amplitude modulation. Okay, this is a very simple block diagram for that generating of a pulse amplitude modulation. Means what, whatever the modulating signals, means ये क्या है तुम्हारा modulating signal, means क्या है तुम्हारा information signal है, message signal है. This message signal is given to the low pass filter. Why we are using the low pass filter? Because we are sending or we are transmitting the lowest frequency at the output of लो पास फिल्टर. ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे लो पास फिल्टर के थ्रू, और कहाँ पे जाएंगे, दिस गिवन टू दैट मल्टीप्लायर. ओके, दिस गिवन टू द मल्टीप्लायर, एंड इन दैट मल्टीप्लायर having the two signal, which signal, one is the modulating signal, means whatever the information signal, message signal is passing from that low pass filter, whatever the frequency is required in that multiplier, this frequency is given to that multiplier block. Along with that सैम्पलिंग सिग्नल, मीन सैम्पलिंग मीन्स व्हाट, सैम्पलिंग में अपने एक सिग्नल एंड सिस्टम में सब्जेक्ट में क्या था, एक सैम्पलिंग थ्योरम था, राइट. सैम्पलिंग थ्योरम मीन्स क्या होता है, एफएस इज ग्रेटर, जो भी तुम्हारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रहती है ट्वाइस ऑफ एफएम रहती है, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम. मीन्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से क्या रहता है, ट्वाइस ऑफ एफएम से मेरी सिग्नल मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रहती है तो अपन क्या उसको बोलते हैं, सस्टेन ऑसिलेशन, और सस्टेन सिग्नल बोलते हैं. मीन्स मॉडरेट सिग्नल, वो सिग्नल अपन क्या करते हैं, बाय यूजिंग दैट सैम्पलिंग थ्योरम से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. ठीक है, इसलिए अपन ने बोला है सैम्पलिंग सिग्नल. ठीक है, और सैम्पलिंग में क्या होता है, जो भी तुम्हारा पल्सिंग जो रहता है, पल्स जो भी तुम ट्रांसमिट कर रहे हो along with that some signal, वो क्या कहाँ जा रहा है, this is a given to that multiplier block. Okay, in that multiplier to make multiplication of these two signal, which signal, one is the message signal and another is the sampling signal. Means whatever the sampling signal is given to the multiplier, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद whatever the signal will be occur at the output of multiplier, pulse amplitude modulation. Okay, pulse amplitude modulation, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा by using that this block diagram. Okay, but which type of sampling signal is given to that multiplier, in that digital modulation signal, digital communication, there are two sampling is occur. Okay, two sampling is occur in the PAM, which sampling, one is a natural sampling and another is a flat top sampling. This क्योंकि ये हमेशा गेट में पूछा जाता है, क्योंकि PAM में कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाती है, ठीक है, और कौन सी बेटर रहती है फॉर PAM सिग्नल. ठीक है, ये दो सैम्पलिंग इसमें यूज की जाती है, वन इज द नेचुरल सैम्पलिंग एंड अनदर इज द फ्लैप टॉप सैम्पलिंग. दीस आर द टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज यूज
for that PAM signal. But इसका अपने को difference भी पता होना चाहिए, why we are using the natural sampling, why we are using flat top sampling, what are the drawbacks, what are the disadvantages of that these two samplings, natural sampling and flat top sampling, and which one is the which is the best sampling for that digital communication. Okay, first of all, this is a natural sampling. Natural sampling nothing but the only the changing of that this amplitude. देखो, this is a my message signal. ओके, दिस इज माय मैसेज सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल. ये इंफॉर्मेशन सिग्नल ये कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा किसके साथ, ये दिस इज द सैम्पलिंग सिग्नल के साथ, मीन्स दिस इज माय पल्स ट्रेन. ठीक है, दिस इज द पल्स सिग्नल. ये दोनों का जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी मुझे नेचुरल सैम्पलिंग अगर यूज करता हूँ, तो नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होता है, दिस इज ओनली द कट पोर्शन ऑफ एम्पलीट्यूड. दिस इज द कॉर्नर पोर्शन. जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड वेरी होता है या कम होता है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो सैम्पलिंग होती है कट होती है इस टाइप में. दिस इज द कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग. ओके, दिस इज अ नेचुरल सैम्पलिंग. दिस इज द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. दिस इज अ मैसेज सिग्नल, दिस इज माय पल्स ट्रेन सिग्नल, जिसको अपन बोलते हैं इम्पल्स वेव्स और इम्पल्स signals. This is a pulse train signals, pulses we have to use for that multiplication of this two signal. ये दोनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये मुझे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में मुझे क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा. बट इन दैट फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इसमें क्या होता है, मेरा मैक्सिमम जो एरर होता है, देखो यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है मेरा वेव फॉर्म, तो इसमें क्या होता है, मेरा एरर जनरेट होता है इन द लॉस ऑफ दिस सिग्नल फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में. तो समझ में आया, क्योंकि कैसा होता है कभी कभी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग यूज भी होती है और कभी कभी नहीं भी यूज होती है. बट जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अगर अपने बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग करेंगे और नहीं तो नेचुरल सैम्पलिंग अपन यूज करेंगे. बट इन दैट फ्लैट टॉप सैम्पलिंग सम एरर विल बी ऑकर ड्यूरिंग दैट ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन. ओके, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट PAM सिग्नल. क्योंकि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पता होना बहुत जरूरी है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट PAM? दिस इज जनरेशन एंड डिटेक्शन इज वेरी इजी. मीन्स इसमें जो आउटपुट में अपन जो सिग्नल जनरेट करते हैं एट द आउटपुट ऑफ माय मल्टीप्लायर, दिस इज अ वेरी इजी टू डिटेक्ट और इजी टू जनरेट द PAM सिग्नल. ओके, बट some drawbacks or some disadvantages of that PAM. Which disadvantages? Because in when we have to generate the PAM signal, okay, when we have to generate the PAM signal, that time whatever the changes will be occur. Which changes? Means in that pulse, in that amplitude of a pulses, PM मीन्स क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पल्सेस क्या होता है, मेरा वेरी होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग विद दैट माय मैसेज सिग्नल. और जो चेंजेस विल बी ऑकर, किसमें चेंजेस हो रहे हैं, मेरे एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस में क्या हो रहा है, चेंजेस. और मेरी इंफॉर्मेशन किस में रहती है, व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, मेरी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, मेरी एम्पलीट्यूड ऑफ माय पल्सेस. बराबर है, मेरी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस. अगर मेरी एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस अगर वेरी हो रही है या कट हो रही है या रिमूव हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा रिमूव. इसका मतलब हो रहा है कि मेरा एरर विल बी ऑकर ड्यूरिंग दैट जनरेशन ऑफ अ PAM. मीन्स अगर मेरा एम्पलीट्यूड अगर कम होता है, क्योंकि इस वेरी ऑफ पल्सेस ऑफ एम्पलीट्यूड, PM मीन्स क्या होता है, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस. अगर मेरा वेरी हो रहा है या चेंजेस हो रहा है एम्पलीट्यूड में, मीन्स इसमें वोल्टेज वेरी हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा नॉइज विल बी जनरेटेड. मीन्स मैक्सिमम नॉइज विल बी जनरेटेड. और वो नॉइज अपन इजीली क्या कर नहीं पाएंगे, रिमूव नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अगर मैं एम्पलीट्यूड अगर कम ज्यादा करता हूँ तो अपन वी कैन नॉट रिमूव इजीली द नॉइज ड्यूरिंग दैट ट्रांसमिशन. ये मेरा डिसएडवांटेजेस, बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ PAM. तो हमेशा याद में रखना है आपको. और इसकी जो बैंडविड्थ रहती है, दिस इज अ वेरी लार्ज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ PAM. क्योंकि आपको गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मॉड्यूलेशन टेक्निक में बैंडविड्थ ज्यादा रहती है, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अपनी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या रहती है, सबसे हाई रहती है. ठीक है. सेकंड थिंग इज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. सिमिलरली मीनिंग इज इन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जैसे मैंने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा था, उसमें क्या था, द एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस विल बी वेरी और changes according with that my information signal. Similarly will be happen in the pulse width modulation. Pulse width modulation में भी सेम होता है. क्या होता है, width of a pulses, width of a pulses it changes according with that my modulating
सिग्नल और अकॉर्डिंग विद द माय मैसेज सिग्नल। ओके, जो भी तुम्हारा विड्थ ऑफ अ डिस्क्रीट कैरियर, जो भी कैरियर का जो सिग्नल रहता है उसकी विड्थ जो रहती है क्या रहती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग विद दैट माय मैसेज सिग्नल कॉल्ड एज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका भी ब्लॉक डायग्राम है। ओके, और एक थिंग, और एक चीज है इसमें कि आपको गेट में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ब्लॉक इज यूज फॉर जनरेटिंग ऑफ अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। मींस इसमें ऑप्शन रहेंगे मल्टीप्लायर, कंपैरेटर, देन एम्पलीफायर। ओके, विच पैरामीटर और विच ब्लॉक इज यूज फॉर जनरेटिंग ऑफ अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटर इज यूज टू जनरेटिंग ऑफ और टू डिटेक्टिंग ऑफ अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। दिस इज अ कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करता है, दोनों को कंपेयर करता है, दो सिग्नल को। विच सिग्नल, दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस माय इंफॉर्मेशन सिग्नल और मैसेज सिग्नल अलोंग विद दैट माय सॉटूथ जनरेटर। और इसमें क्या रहता है, सॉटूथ जनरेटर जो वेवफॉर्म रहती है वो क्या होती है, इसमें यूज की जाती है बाय यूजिंग दैट फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर सभी को पता होगा। इसके थ्रू अपन क्या रहता है, सॉटूथ जनरेटर का एक नॉब रहता है या उसमें एक बटन रहता है सॉटूथ जनरेटर का। ठीक है, तो वो सॉटूथ जनरेटर अगर उसको पुश करोगे तो सॉटूथ वेव फॉर्म अपने को मिल जाएंगे और वो वेव फॉर्म किसको जाएंगे, कंपैरेटर के थ्रू। और जो भी मॉडरेटिंग सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल जो भी 2 किलोहर्ट्ज 1 किलोहर्ट्ज का जो भी दूंगा उसके साथ क्या हो जाएगा, कंपेयर होगा। और कंपैरेटर क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके to detect or to generate the pulse width modulator or pulse width modulating signal. Okay, this is a sawtooth waveform. This is my modulating signal. This is my information signal and this is my sawtooth waveform. ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म रहती है। देखो ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हम फंक्शन जनरेटर के थ्रू भी देते हैं और ये दोनों के दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे, फिर कंपेयर हो जाएंगे इन दैट कंपैरेटर। और कंपेयर होने के बाद फिर उसके हिसाब से मुझे क्या मिलेंगी, वेवफॉर्म मिलेंगी जो भी मुझे आउटपुट में मिलना है एज एट द आउटपुट ऑफ माय कंपैरेटर। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द विड्थ ऑफ अ पल्सेस विच चेंजेस अकॉर्डिंग विद दैट माय इंफॉर्मेशन सिग्नल मैसेज सिग्नल। देखो तो कहाँ पे कम दिख रही है, कहाँ पे ज्यादा दिख रही है, कहाँ पे कम दिख रही है, कहाँ पे ज्यादा दिख रही है, मीन्स डिपेंडिंग ऑन दैट माय मॉडरेटिंग सिग्नल। ओके, दिस इज अ पल्स विड्थ मॉडरेटिंग सिग्नल। इसमें भी सम एडवांटेजेस है और सब डिसएडवांटेजेस है। व्हाट इज द एडवांटेजेस फॉर द पल्स विड्थ मॉडुलेशन, इट इज अ वेरी गुड नॉइज इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें नॉइज इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रहती है। गुड नॉइज वाई, बिकॉज इसमें अपन क्या करते हैं, सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करने के बाद अपने को जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, इसमें मिनिमाइज नहीं हो रही है, बराबर है। जो भी मेरा वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म एज इट इज जा रहा है, बस एम्पलीट्यूड सेम आ रहा है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर्ड है, मेरी एम्पलीट्यूड ऑफ माय पल्सेस, उसमें मेरी इंफॉर्मेशन सेव है। तो इसलिए अपन एम्पलीट्यूड कम नहीं कर रहे हैं, तो अपन क्या कम कर रहे हैं, वी हैव टू रिमूव द वी हैव टू चेंजिंग ऑफ अ विड्थ ऑफ अ एम्पलीट्यूड, विड्थ कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब विड्थ कम कर रहे हैं तो अपना जो नॉइज रहता है इन दैट सिग्नल इज लेस, सो दैट the noise immunity is greater in the pulse width modulating signal. Okay, and another thing is another advantage is separate out the signal from the noise. इसमें क्या होता है, from अगर अपने को अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल अगर अपने को सेपरेट करना है फ्रॉम दैट नॉइज, इट इज अ इजीली टू सेपरेट द सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम दैट नॉइज। ओके, इसमें सम ड्रॉबैक्स है, जो भी इसमें बैंडविड्थ जो रहती है, इसमें बैंडविड्थ क्या रहती है, ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू पीएएम। पीडब्ल्यूएम में क्या रहती है, सब बैंडविड्थ जो रहती है इससे ज्यादा रहती है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ज्यादा रहती है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। Okay, third is the main important is the pulse position modulation. Okay, previously we have discussed the pulse amplitude modulation and pulse width modulation. Similarly, similarly meaning for that pulse position modulation, only the changing of a position of a pulses means position of a pulses means उसकी जो position रहती है ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल की, किसकी, कैरियर ऑफ अ पल्सेस की, वो क्या रहती है, चेंज हो जाती है with the help of modulating signal or according with that modulating signal or message signal. Okay, and remaining parameter will be constant, width and width is a constant. Okay, this is a block diagram for that pulse position modulation. Okay, same block we have to use in that pulse position modulation means कौन सा ब्लॉक अपन सेम यूज कर रहे हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन का जो ब्लॉक है, ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट एट द आउटपुट ऑफ पल्स विथ मॉड्यूलेटर सिग्नल वी हैव टू यूज द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आपने देखा होगा
जिसको अपन मल्टी वाइब्रेटर अपन यूज करते हैं, मोनोस्टेबल, बायस्टेबल, अस्टेबल, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर वी हैव टू use, or we have to generate one step waveform, one step stable waveform we have to generate. That time we are using these multi vibrator means 555. आपने IC सुना होगा, which IC is used for the multi vibrator? IC 555 is used for that multi vibrator. Okay, this may be monostable है, astable है, bistable है, but here in the pulse position modulation we have to changing of a one beat. Mono means what? one step क्या हो रहा है मेरे, one step पल्स की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. दैट टाइम that's why we are using the monostable multi vibrator. Okay, only changing of a one step for that waveform to generate the pulse position modulation. This is a waveform for that pulse position modulation. This is my analog signal, or this is a message signal or baseband signal. Along with that my carrier of a pulses. ओके, दीज आर द टू. कंपेयर करने के बाद जो भी मुझे सिग्नल मिलता है, दिस इज द पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो इसका जो देखो पोजीशन हर एक का क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट माय इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल. ओके, बाय यूजिंग दैट मल्टी वाइब्रेटर, बाय यूजिंग दैट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ठीक है, बाय यूजिंग दैट दिस आईसी वी हैव टू जनरेट द चेंजिंग ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ pulses called as the pulse position modulation. Okay, some advantages and some disadvantages of that pulse position modulation is a very high noise immunity as compared to the pulse amplitude modulation, pulse width modulation. And some disadvantages of pulse position modulation, it is a detection and generation is a very difficult. मीन्स इसका जो जनरेटिंग रहता है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है एज कम्पेयर टू द pulse position model, pulse amplitude modulation and pulse width modulation. Okay, now let's move on the digital pulse modulation. इसमें digital pulse modulation में क्या होता है, these are the two type of main means pulse code modulation, then उसके बाद adaptive delta modulation, then differential pulse code modulation. These are the different type of modulation which are used in the digital modulation. Okay, in that pulse code modulation में क्या होता है, in this type of pulse modulation the group of pulses or group of codes means what, 1 0 1 0 like that. Okay, or we can pulse 0 pulse 1 pulse 0 pulse 1 pulse means in the form of group, right? The group of pulses or codes are transmitted which represent binary number corresponding to the modulating signal voltage, right? इसमें क्या होता है pulse code modulation में, the group of pulses or group of codes we have to transmit it for that modulating signal voltage, right? This is a block diagram of a PCM generator. PCM generate और PCM डिटेक्ट करने का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है. सेम thing is happen in that block diagram. The whatever the message signal is given to that low pass filter, जैसे मैंने पहले बताया था लो पास फिल्टर का फंक्शन क्या है, this is used to generate or used to pass the lowest frequency. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर 50 किलोहर्ट्ज में अगर यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा हो तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, 50 किलोहर्ट्ज यहाँ से ट्रांसमिट नहीं करेगा, इसमें का जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको जितना भी सुटेबल लगता है उतना, अगर 5 किलोहर्ट्ज लगता है या 10 किलोहर्ट्ज लगता है, जितना भी लगता है लो पास फिल्टर क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी पास करेगा, ट्रांसमिट करेगा टू दैट एस एंड एच मीन्स क्या होता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट. जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहले इसमें सैम्पलिंग सिग्नल अपन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. सैम्पलिंग सिग्नल मीन्स नेचुरल सैम्पलिंग होता है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होता है. दीज आर द सैम्पलिंग विच काइंड ऑफ सैम्पलिंग वी हैव टू यूज फॉर दैट दिस जनरेटिंग ऑफ अ पल्स कोड मॉड्यूलेशन. मीन्स इसमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट में क्या होता है, जो भी सैंपल आता है किसके थ्रू आता है, पल्स जनरेटर के थ्रू क्या होता है, मेरा सैंपल आ जाता है. सैंपल को क्या करता है, वो नेचुरल सैम्पलिंग या फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में कन्वर्ट करता है और उसको क्या करता है, होल्ड करता है. मीन्स जैसे 0 to 1 तक जा रहा है मेरा वेव फॉर्म, तो 1 से उस ड्यूरेशन तक क्या करेगा, वो होल्ड करने के बाद फिर 1 से 0 हो जाएगा, राइट? इसको क्या बोलते हैं अपन, सैंपल एंड होल्ड सर्किट. मीन्स उसको सैंपल कर रहा है उस सिग्नल को और उसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है कुछ टाइम ड्यूरेशन तक, तो इसलिए बोलते हैं उसको सैंपल एंड होल्ड सर्किट, राइट? तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बाद ये क्वांटाइजर है. क्वांटाइजर इसलिए यूज करता है, दिस इज द क्वांटाइजेशन लेवल. मीन्स
क्वांटाइजर क्या करता है, क्वांटाइजेशन लेवल को डिसाइड करता है कि अगर मैं यहाँ पे 3 बिट ले रहा हूँ, 3 बिट ले रहा हूँ, 4 बिट ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 बिट का अगर सिग्नल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 बिट अगर यूज करता हो, क्वांटाइजेशन की लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, 2:3। क्वांटाइजेशन की लेवल अपन कैसे डिसाइड करते हैं, अगर तो मैं 3 बिट अगर यहाँ पे यूज करता हूँ सैंपल एंड होल्ड सर्किट में, तो 2:3 मीन्स कितना हो रहा है मेरा, 8 बिट मीन्स 8 क्वांटाइजेशन लेवल। और क्वांटाइजर यहाँ पे क्या करूंगा, क्वांटाइजेशन लेवल 8 लेवल तक मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा, तब कि मेरे 3 बिट्स उस 8 लेवल तक ट्रांसमिट हो जाएंगे, राइट। सो दैट वी आर यूजिंग दिस क्वांटाइजर ब्लॉक। ओके, क्वांटाइजर ब्लॉक इज यूज टू to decide the quantization level of my signal. After that quantization level, this signal is encoder. Encoder का मीनिंग क्या होता है, जो भी मुझे क्वांटाइजेशन सैंपल होने के बाद जो मुझे सिग्नल मिलता है, बट एनकोड हुआ है क्या, वो सिग्नल मेरा नहीं हो रहा है, तो एनकोड हो रहा है किसमें, डिजिटल में एनकोड हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल में एनकोड हो रहा है मेरा सिग्नल। तो एनकोडर इसलिए यूज कर रहा हूँ, जब भी मेरा एनालॉग टू डिजिटल में एनकोड करता हो, तब उस टाइम पे पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन होता है मेरा, बराबर है, पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन। उस टाइम पे ये ब्लॉक यूज किया जाता है पैरेलल टू सीरियल कनेक्शन और पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट पूरा होने के बाद क्या मिलेगा मुझे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन यहाँ से मिल जाएगा। आया समझ में, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का मीनिंग, जो भी नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होते हैं थ्रू दैट क्वांटाइजर और थ्रू दैट क्वांटाइजेशन लेवल, और किसके आउटपुट में मिलेगा, पैरेलल टू सीरियल कनेक्शन के आउटपुट में पल्स कोड मॉड्यूलेशन अपने को मिलेगा। मींस नंबर ऑफ बिट्स और नंबर ऑफ कोड्स अपने को ट्रांसमिट मिलेंगे ग्रुप के फॉर्म में एट द आउटपुट ऑफ माय दिस पैरेलल टू सीरियल कनेक्शन, right? This is the waveform for that pulse code modulator, modulating signal. This is my analog signal, or this is my message signal along with that carrier pulses. This is my carrier pulses, जिसको अपन बोलते हैं पल्स जनरेटर के थ्रू में क्या कर रहा हूँ, ये पल्सेस क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, सैंपल एंड होल्ड सर्किट को, राइट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करेगा, ये पल्सेस को इसके साथ सैंपल करेगा, होल्ड करेगा, सैंपल करेगा, होल्ड करेगा, राइट। दिस इज अ फ्लैट टॉप सैंपलिंग। देखो यहाँ पे अपने को कौन सी सैंपलिंग मिल रही है, फ्लैट टॉप सैंपलिंग मिल रही है। तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग में क्या होता है, ये सिग्नल और ये सिग्नल को मिक्स करने के बाद जो भी अप्रोक्सीमेशन रहता है सिग्नल का, उसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजर। क्वांटाइजर का मीनिंग क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस सिग्नल्स। जिस कॉर्नर को मेरा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टच कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ सिग्नल, राइट। अप्रोक्सीमेशन ऑफ सिग्नल इसलिए करते हैं कि मेरा सिग्नल सब ज्यादा से ज्यादा करेक्ट होना चाहिए, नॉइज जो है, नॉइज कम से कम होना चाहिए, नॉइज इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन यूज करते हैं। सो दैट क्वांटाइजेशन यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन लेवल यूज करते हैं। अगर मैं 3 बिट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बिट में ट्रांसमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने बिट्स यूज कर रहा हूँ मैं, 3 बिट्स यूज कर रहा हूँ, राइट। 3 बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज कर रहा हूँ, 3 बिट्स यूज कर रहा हूँ, बाइनरी बिट 3 बिट्स, राइट। तब मुझे क्या कर रहा है, दिस इज माई क्वांटाइजेशन लेवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे। बट किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दिस इज डिपेंडिंग ऑन दैट how many bits we have to use for that generating of a pulse code modulation. Here in that waveform we are using the 3 bits for that pulse code modulation. Okay, in that 3 bits में उसका quantization level का formula क्या है, 2 raised to n. 2 raised to n means क्या है, n number of bits, how many bits we have to use for generating of my PCM. यहाँ पे 3 बिट्स यूज कर रहा हूँ, तो 2 रेस टू 3 मीन्स कितना होता है, 8 क्या हो गया तुम्हारा, क्वांटाइजेशन लेवल हो गया। 8 लेवल तक मैं क्या करूंगा, क्वांटाइजेशन लेवल यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो डिफाइन करने के बाद उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे वेवफॉर्म मुझे फाइंड हो जाएंगी, राइट, नंबर ऑफ बिट्स। तो अगर मैं यहाँ पे 3, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे 2 पे मेरा क्या हो रहा है, कट हो रहा है, 2 पे मुझे वेवफॉर्म मिल रही है, तो मेरा बीट क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 मीन्स 2, राइट। यहाँ पे 3 बिट पे मुझे 3 क्वांटाइजेशन लेवल पे क्या मिल रहा है, मुझे वेवफॉर्म मिल रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 0 1 1 मीन्स 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, राइट। तो 3 बिट तक मुझे क्या हो रहा है, वेवफॉर्म मिल रही है। फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 क्वांटाइजेशन लेवल को मुझे वेवफॉर्म मिल रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 1 0 1 मीन्स 1 और 4 कितना होता है, 5, तो 5 क्वांटाइजेशन लेवल पे मुझे वेवफॉर्म मिल रही है। इसके हिसाब से क्या होता है, नंबर ऑफ
बीट्स के हिसाब से जनरेट कर ट्रांसमिट करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, मुझे पल्स कोड मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म मिल जाएंगे। दिस इज द स्टेयरकेस वेवफॉर्म, राइट। दिस इज द स्टेयरकेस वेवफॉर्म के फॉर्म में मुझे क्या मिलेंगे, पीसीएम वेवफॉर्म मिलेंगे। पीसीएम किसके फॉर्म में रहती है, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन किस किस टाइप के वेवफॉर्म में मुझे वेवफॉर्म मिलती है, तो स्टेयरकेस फॉर्म में मुझे क्या मिलती है, वेवफॉर्म मिलती है, राइट। स्टेयरकेस फॉर्म में मुझे क्या मिलती है, वेवफॉर्म मिलती है। और एक चीज इसमें ध्यान में रखना है, दिस इज माय स्टेप्स है। स्टेयरकेस में क्या होता है, अपने को स्टेप्स मिलता है। देखो स्टेप्स बोलते हैं ना अपन, ये देखो यहाँ पे स्टेप्स, फिर यहाँ पे स्टेप्स, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप साइज। और वी कैन डिनोट बाय द डेल। डेल्टा और डेल से क्या करते हैं, स्टेप साइज को अपन डिनोट करते हैं, डेल्टा, राइट। तो उसको अपन बोलते हैं स्टेप साइज के हिसाब से अपन क्या मिलते हैं, स्टेयरकेस वेवफॉर्म मिलती है। स्टेयरकेस वेवफॉर्म से अपने को पीसीएम वेवफॉर्म अपने को डिटेक्ट होती है, जनरेट की जाती है। सम एडवांटेजेस ऑफ अ पीसीएम, दिस इज अ वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन, दिस इज अ वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन। एनकोडिंग इज पॉसिबल इन दैट पीसीएम, बाकी इसमें एनकोडिंग इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ वेरी ग्रेट हाई नॉइज इम्यूनिटी, इसमें नॉइज बहुत कम मिलता है अपने को फॉर यूजिंग दैट पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एंड मेन थिंग इज हैपन इन द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अपन के लिए क्या करते हैं, पीसीएम मॉड्यूलेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। अगर मुझे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक मुझे अगर कम्युनिकेशन करना है, इस कंट्री से वहां उस कंट्री तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो उस टाइम पे मैं कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करूंगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज करूंगा। एंड इट इज अ गुड सिग्नल टू नॉइज रेशो, जिसका एसएनआर जो रहता है, सिग्नल टू नॉइज रेशो, इट इज अ वेरी गुड और इट इज अ हाई, राइट। सम डिसएडवांटेजेस आल्सो होगा, क्योंकि हर एक मॉड्यूलेशन के पीछे एडवांटेजेस भी रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। और उस डिसएडवांटेजेस को अगर ओवरकम करते हैं तो वो मेरा हो गया रिसर्च। अपन बोलते हैं ना कि फाइनल ईयर में अपन प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ रिसर्च करना है, एमटेक को रिसर्च करना है, तो रिसर्च मीन्स व्हाट, जो भी टेक्निक अगर लेटेस्ट में जो भी टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक में जो भी ड्रॉबैक्स रहते हैं, जो भी डिसएडवांटेजेस रहते हैं, उस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए खुद की टेक्निक डेवलप करके, उस एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके, जो मुझे न्यू टेक्निक्स या न्यू टेक्नोलॉजी डिफाइन करते हो, फॉर दैट गुड, उसको क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ सिग्नल और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको अपन बोलते हैं न्यू रिसर्च ऑफ योर टेक्नोलॉजी। ओके, दिस इज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ पीसीएम। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सर्किटरी, मीन्स जब भी अपन उसका सिग्नल डिटेक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उस टाइम पे सम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑकर, इट्स वेरी रिक्वायर लार्ज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ भी इसका बहुत ज्यादा रहता है पीसीएम का। एंड और पीसीएम अगर यूज करता हो तो सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी रिक्वायर्ड बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अगर मैं सिंक्रोनाइजेशन अगर यूज ही नहीं करूंगा, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आगे वाले को रिसीव नहीं कर पाऊंगा, राइट। द सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर फॉर दैट, communication in the PCM. Okay, okay. Another is a differential pulse code modulation. डिफरेंशियल पल्स कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो भी डिफरेंस रहता है, मीन्स प्रीवियस और प्रेजेंट, जो भी प्रीवियस सैंपल रहता है या और प्रेजेंट सैंपल रहता है, उसको दोनों को कंपेयर करके जो भी बेटर रहता है, उस बेटर सैंपल को अगर मैं ट्रांसमिट करता हूँ, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इस डेफिनेशन, इस वर्ड्स में उसका क्या है मीनिंग है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो भी डिफरेंस रहता है, विच डिफरेंस प्रीवियस सैंपल एंड प्रेजेंट सैंपल, और दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, दोनों को डिफरेंस करूंगा। जो भी कंपेयर करने के बाद जो भी बेटर सिग्नल रहेगा प्रेजेंट और प्रीवियस का, उस सैंपल को क्या करूंगा, मैं ट्रांसमिट करूंगा। ओके, वो होता है मेरा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेटर जनरेटर। दिस इज माय सेम ब्लॉक डायग्राम इज हियर, बट हियर इन द प्रिडिक्टर एंड एक्यूमुलेटर इज यूज फॉर दैट सर्किट। प्रिडिक्टर क्या करता है, जो भी मेरा प्रिडिक्टेड वाला जो सैंपल रहता है, मीन्स नेक्स्ट वाला, ठीक है, उसको क्या करूंगा, मैं प्रिडिक्ट करूंगा उस सैंपल को, और उसको क्या एक्यूमुलेटर क्या करता है, उसको स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर का फंक्शन क्या रहता है, जो भी सैंपल रहता है उसको क्या करूंगा, मैं स्टोर करूंगा। स्टोर करने के बाद ये मेरा कंपैरेटर के उसके उसके इनपुट में दूंगा। फिर बाद में सैंपल एंड होल्ड सर्किट, सेम फंक्शन, सेम वर्किंग विल बी ऑकर
in the sample and hold, quantizer, encoder parallel to serial. Okay, but in the differential pulse coordination में क्या होता है, predictor and accumulator ये क्या होता है, block use होता है for generating और for predicted sample of new PCM. जो भी मुझे प्रिडिक्टेड जो सैंपल मिलता है उसको कंपेयर करूंगा इन द डिफरेंशियल पल्स कोड मॉडरेटर जनरेटर में. ओके, सम एडवांटेजेस ऑफ दैट DPCM इज वेरी हाई बीट रेट, इसका बीट रेट बहुत ज़्यादा रहता है, एंड प्रिडिक्टर सर्किट इज यूज, क्योंकि बाकी कौन से भी इसमें PCM में प्रिडिक्टर यूज नहीं करूंगा, बट ओनली द प्रिडिक्टर सर्किट इज यूज इन DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉडुलेशन में अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्टर यूज करते हैं. प्रिडिक्टर क्या करता है, दो नेक्स्ट सैंपल को क्या करता है, जनरेट करता है, प्रिडिक्ट करता है, इसलिए अपन प्रिडिक्टर यूज करते हैं. सेकंड थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडुलेशन इज द डेल्टा मॉडुलेशन. डिजिटल मॉडुलेशन में ये डेल्टा मॉडुलेशन, अडैप्टिव डेल्टा मॉडुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडुलेशन. व्हाई? बिकॉज फॉर जनरेटिंग ऑफ अ करेक्ट सिग्नल, फॉर जनरेटिंग ऑफ अ नॉइजलेस सिग्नल by using that delta modulation and adaptive delta modulation. डेल्टा मॉडुलेशन यूज करते थे, बाद में अडेप्टिव डेल्टा मॉडुलेशन यूज करते हैं. क्यों पहले क्यों अडेप्टिव डेल्टा मॉडुलेशन यूज करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, वन बाय वन. इन PCM सिस्टम में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स अपन क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं PCM में, बराबर है कि नहीं. तो नंबर ऑफ बिट्स अपन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. बट इसमें क्या होता है, जो भी मेरी स्टेप साइज थी, स्टेप साइज में जो स्टेयरकेस वेवफॉर्म थी, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज हर जगह पे क्या होती है, कम ज्यादा हो रही है. बट इसमें क्या होता है, मुझे जितना चाहिए उतना कम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. इसकी जो स्टेप साइज रहती है, स्टेप साइज में क्या होता है, इसमें डेल्टा मॉडुलेशन में इसकी स्टेप साइज क्या होती है, कांस्टेंट रहती है. इसकी जो स्टेप साइज क्या रहती है, PCM की जो PCM मॉडुलेशन, PCM वेवफॉर्म की स्टेप साइज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है और फिक्स रहती है डेल्टा मॉडुलेशन. इसलिए क्या होता है, इसका जो सिग्नल रहता है मे बी लॉस होता है, कभी कभी इसमें एरर नॉइज होता है. ठीक है, डेल्टा मॉडुलेशन में, और उसको ओवरकम करने के लिए अपन क्या करते हैं, अडैप्टिव डेल्टा मॉडुलेशन यूज करते हैं. उसका नेक्स्ट अपन पार्ट देखेंगे, बट उसके पहले अपन क्या करेंगे, इसकी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे. तो डेल्टा मॉडुलेशन में क्या होता है, दिस इज माय कंपैरेटर सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज आल्सो यूज. देन अप डाउन काउंटर. अप डाउन काउंटर का मीनिंग क्या होता है, तुम्हारा 1010 जो रहता है सर्किटरी, जो पल्स जनरेट करते हैं अपन, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अप डाउन काउंटर यहाँ पे यूज करते हैं. तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं. अप्रोक्सीमेशन जो सिग्नल रहता है, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्या बोलते हैं अपन उसको, क्वांटाइजेशन लेवल. वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ सिग्नल फाइंड करता है. फिर अप्रोक्सीमेशन सिग्नल फाइंड करने के बाद कंपैरेटर को देता है. फिर इसके सबसे क्या होता है, इसमें एक ही डिसएडवांटेजेस है, इसकी जो स्टेप साइज रहती है, जो वेवफॉर्म की जो स्टेप साइज रहती है, क्या रहती है मेरी, कांस्टेंट रहती है. ठीक है, कांस्टेंट रहती है. देखो यहाँ पे ये वेवफॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज माय पल्स ट्रेन, दिस इज माय पल्सेस एंड दिस इज माय इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल अलोंग दैट माय पल्सेस. इसमें क्या रहता है, पल्स साइज जो रहती है, स्टेप साइज हमेशा सेम रहती है. ठीक है, सेम रहती है. बट इसका वेवफॉर्म, ये जो डेल्टा मॉडुलेशन कैसे फाइंड होता है, इसका देखो, ये है एक्स ऑफ टी में क्या है मेरा, ओरिजिनल सिग्नल, मैसेज सिग्नल. व्हेन एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन एक्स डैश ऑफ टी, ये दो सिग्नल अगर कंपेयर करता हूँ, जब मेरा एक्स ऑफ टी जो मैसेज सिग्नल रहता है, तो अगर ग्रेटर रहता है एक्स डैश ऑफ टी से, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सिग्नल अगर मैं कंपेयर करूंगा इससे, ओरिजिनल सिग्नल और इससे, जब मेरा एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन एक्स डैश ऑफ टी, ये डेल्टा स्टेप साइज क्या रहता है मेरा, इंक्रीज हो जाता है. क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देखो ये मेरा एक्स ऑफ टी है और ये मेरा क्या है, एक्स डैश ऑफ टी. एक्स ऑफ टी अगर ग्रेटर होता है, ये देखो वेवफॉर्म से, ये वेवफॉर्म से ये क्या है, मेरी वेवफॉर्म ग्रेटर है. तो एक्स ऑफ टी क्या हो रहा है मेरा, ग्रेटर हो रहा है एक्स डैश ऑफ टी, तो मेरी स्टेप साइज क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, राइट, इंक्रीज हो रही है. तो मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज मीन्स 1 हो रहा है. ठीक है, 1. बट कहाँ तक 1 हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट माई मैसेज सिग्नल, डिपेंडिंग ऑन दैट माई मैसेज सिग्नल्स. ठीक है, फिर सेकंड इसमें देखते हैं, तो यहाँ तक तो हो गया. फिर बाद में इसको और कंपेयर करते हैं दो सिग्नल को, फिर से एक्स ऑफ टी एंड एक्स डैश ऑफ टी. एक्स ऑफ टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एक्स डैश ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा, मेरा सिग्नल इंक्रीज हो जाएगा. तो इंक्रीज तो ऑलरेडी है, तो कहाँ तक जाएगा इंक्रीज, यहाँ तक जाएगा. कहाँ तक, यहाँ तक. ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो यहाँ तक 1 हो जाएगा, राइट, 1 है. फिर बाद में ये दो सिग्नल को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा. कंपेयर करने के बाद एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन एक्स डैश ऑफ टी, फिर से है एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन, कहाँ तक है, यहाँ तक है, इस सिग्नल तक.
फिर यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चलेगा द एक्स डैश ऑफ टी, नहीं तो एक्स डैश ऑफ टी इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ टी, एक्स डैश ऑफ टी इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो को हो जाएगा, जीरो मीन्स 1 to 0 हो जाएंगे मेरी वेव फॉर्म, हाई टू लो तो नीचे हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा मॉड्यूलेशन मिल जाएगा। बट डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसकी स्टेप साइज जो रहती है क्या रहती है, फिक्स रहती है, राइट। स्टेप साइज क्या रहती है, फिक्स रहती है। बट अगर स्टेप साइज अगर फिक्स रहती है उसमें नॉइज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी जगह पे मुझे स्टेप साइज वही होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट माई सिग्नल उसकी स्टेप साइज वेरी होना चाहिए, वेरी होना चाहिए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अडेप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। तो एडवांटेजेस इसके हैं, 1 बिट कोड वर्ड फॉर आउटपुट, हर एक आउटपुट में क्या मिलता है मुझे, 1 बिट कोड मिलता है। इसका जो सिग्नलिंग रेट रहता है लोवेस्ट सिग्नलिंग रेट रहता है, एंड इसकी जो बैंडविड्थ रहती है लोवेस्ट चैनल बैंडविड्थ रहती है, ठीक है। हाँ, डिसएडवांटेजेस देखो, इसमें दो टाइप के नॉइज प्रेजेंट रहते हैं। मैंने बोला ना पहले कि स्टेप साइज अगर मैं फिक्स स्टेप साइज अगर यूज करता हूँ तो इसमें दो टाइप्स के नॉइज जनरेट होते हैं। कौन से, वन इज अ स्लो ओवरलोड नॉइज एंड दूसरा रहता है ग्रैनुलर नॉइज। ये दो टाइप के जो नॉइज रहते हैं ये डेल्टा मॉड्यूलेशन में प्रेजेंट रहते हैं। हमेशा ध्यान में देना है आपको, गेट एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है कि विच टाइप ऑफ अ नॉइज इज प्रेजेंट इन द डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके, विच टाइप ऑफ नॉइज इज प्रेजेंट इन द डेल्टा मॉड्यूलेशन। कौन कौन से नॉइज प्रेजेंट रहते हैं, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, स्लोप ओवरलोड नॉइज भी बोल सकते हैं, और अनदर इज अ ग्रैनुलर नॉइज। ये दो टाइप के जो नॉइज रहते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन में, राइट। देन अडाप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब अडाप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन मैंने पहले ही बताया, अडाप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, वो नॉइज को रिमूव करने के लिए, वो स्टेप साइज फिक्स स्टेप साइज को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, अडाप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन चूज करते हैं, ठीक है। एंड इसमें स्टेप साइज क्या रहती है, वेरिएबल रहती है, राइट, वेरिएबल रहती है। उसमें डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज क्या रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एंड टू अवॉइड द स्लोप और एरर एंड ग्रैनुलर नॉइज प्रॉब्लम, जो भी उसमें स्लोप और एरर प्रेजेंट रहता है डेल्टा मॉड्यूलेशन में, ग्रैनुलर नॉइज प्रेजेंट रहता है, उसको रिमूव करने के लिए मैं अडॉप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज करता है। कौन से तीन इसको यूज करूंगा, व्हेन मेरी स्टेप साइज अगर ज्यादा रहती है उस टाइम पे मैं अडॉप्ट टू, ज्यादा नहीं फिक्स रहती है तो उसको रिमूव करने के लिए, वेरिएबल करने के लिए स्टेप साइज को अडॉप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज करूंगा। अनदर थिंग इज स्लोप और डिस्टॉर्शन एंड ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन के लिए रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए मैं अडॉप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज करूंगा। दिस इज द अडॉप्ट टू डेल्टा मॉड्यूलेशन जनरेटिंग ब्लॉक डायग्राम। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आवाज आ रही है क्या मेरी, यस सर। सुन रहे हो ना? यस सर, सुन रहे। हाँ वही बोला, नहीं तो मैं बताते जा रहा हूँ आप ऐसा नहीं होना चाहिए लेफ्ट हो गए। सभी जन है ना, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की है, मुझे कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। Okay, this is a adapt to delta modulator generator. This is a block diagram of ADM. Same block diagram is used in the adapt to delta modulation. ठीक है, इसमें जो हाँ यहाँ पे डिजिटल प्रोसेसर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन डिजिटल प्रोसेसर क्या करता है उसके हिसाब से क्या करेगा वो, मेरी स्टेप साइज जो रहती है, स्टेप साइज रहती है, फिर ग्रैनुलर नॉइज रहता है, फिर उसमें स्लोप और डिस्टॉर्शन रहता है, जो भी रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिमूव करने के लिए डिजिटल प्रोसेसर, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर वी कैन यूज फॉर दैट जनरेटिंग ऑफ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। बट डिजिटल प्रोसेसर वी हैव टू यूज फॉर जनरेटिंग ऑफ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटिंग जनरेटर और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन वेव्स, राइट। दिस इज अ वेवफॉर्म ऑफ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटिंग वेव्स। देखो पहले इसमें डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या था, आपको दिखाई दिया होगा कि हर जगह पे इसकी स्टेप साइज क्या रहती थी, सेम रहती थी, आपने देखा होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन। बट हियर जैसे जैसे मेरा वेवफॉर्म रहेगा वैसे वैसे मेरी स्टेप साइज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट माय मैसेज सिग्नल और इन्फॉर्मेशन सिग्नल। देखो उसके हिसाब से क्या हो जाएंगे मेरे स्टेप साइज। देखो यहाँ पे 2s है, इसकी स्टेप साइज 2s है, यहाँ पे 3s बढ़ गई स्टेप साइज, फिर यहाँ पे फिर से कम हो गई स्टेप साइज 2s हो गई, या फिर यहाँ से 1s हो गई, तो यहाँ पे भी और 1s हो गई, 1s हो गई। मीन्स इसकी जो स्टेप साइज जो रहती है, स्टेयरकेस वेवफॉर्म की स्टेप साइज क्या रहती है, वेरिएबल रहती है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की, ठीक है। एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में इसकी स्टेप साइज क्या रहती है, वेरी रहती है। इसके हिसाब से अगर मेरी स्टेप साइज वेरी होती है, कम होती है, तो इससे क्या होता है
जो भी मेरा एरर फाइंड आउट होता है, जो भी मुझे नॉइज मिलता है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट माई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ माई स्टेप साइज ऑफ adaptive delta modulation, right? दिस इज सम एडवांटेजेस, इंप्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, क्योंकि इसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है स्टेप साइज इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से उसका क्या होता है, एसएनआर क्या रहता है, बढ़ जाता है, और सिग्नलिंग रेट क्या हो जाता है उसका, लो हो जाता है। और इसमें एडवांटेजेस मेन मैंने बताया, स्लो पोर और ग्रैनुलर नॉइज जो रहता है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है, अवॉइड हो जाता है बाय यूजिंग द एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, these are the conclusion of that pulse modulation technique. These are transmitted and we have to saw their waveform. We also came across the advantages and disadvantages of the different type of modulations. ठीक है, सेकंड थिंग इज अ मॉड्यूलेशन। अब आपको पता है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज होती है, बराबर है कि नहीं? जैसे एनालॉग में कौन सा अपन यूज कौन कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज किए थे, फ्रीक्वेंसी sir. मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज किया था, फेज मॉड्यूलेशन यूज किया था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज किया था। वैसे ही डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं। ये देखो, these are the classification, this is analog modulation। एनालॉग मॉड्यूलेशन में मेरा जो इंफॉर्मेशन रहता है, इंफॉर्मेशन मीन्स कौन सा, मेरा इंफॉर्मेशन मीन्स मेरा जो मैसेज सिग्नल रहता है, बेसबैंड सिग्नल रहता है, उसको अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल। वो क्या रहता है, मेरा एनालॉग फॉर्म में रहता है, राइट? इसमें रहता है एनालॉग फॉर्म में। और इसमें कैरियर जो रहता है, पता है ना, कैरियर भी रहता है, उसको अपन कैरियर भी अपन देते हैं। विदाउट कैरियर अपना एनी काइंड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट होता है क्या, नहीं होता है। तो कैरियर अपने को देना ही पड़ता है, फिर वो कौन सा भी सिग्नल रहो, एनालॉग रहो या डिजिटल रहो, तो कैरियर अपने को देना ही पड़ता है। विदाउट कैरियर वी कैन नॉट ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ अ सिग्नल, इट मे बी एनालॉग और इट मे बी डिजिटल। तो कैरियर एनालॉग मॉड्यूलेशन यूज करता हूँ तो कैरियर कौन सा रहता है, मेरा एनालॉग रहता है। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में कैसा रहता है, मेरी जो इंफॉर्मेशन रहता है, बेसबैंड सिग्नल कौन सा रहता है, मेरा डिजिटल रहता है, राइट? और इसमें जो कैरियर जो प्रेजेंट रहता है वो कैरियर कौन सा रहता है, मेरा एनालॉग कैरियर रहता है, राइट? तो इसमें ये कौन सी है मेरी, दीज आर द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। कौन किस में यूज कर रहा हूँ मैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन में। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की जाती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की जाती है, फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की जाती है। ये तीन जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है वो किस में यूज करते हैं अपन, एनालॉग मॉड्यूलेशन सिग्नल में, राइट? एंड सेकंड पार्ट है डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसमें भी अपन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन बोलते हैं एफ एस के का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, राइट? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। बाद में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, बाद में पीएसके जिसको अपन बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। अब ये तीनों का मीनिंग क्या होता है, शिफ्ट कीइंग का मतलब क्या होता है, जो भी मैं फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ वो क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? कुछ फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, शिफ्टेड हो जाएंगे, उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता है, जो भी मेरा एम्पलीट्यूड रहता है उसका जो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट मीन्स 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, राइट? फिर फेज शिफ्ट में भी वही हो जाएगा। फेज 90 डिग्री 45 डिग्रीज में क्या हो जाएगा, मेरा जो एम्पलीट्यूड रहेगा, मेरा जो फेज रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैरियर का जो फेज रहता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट माई विच काइंड ऑफ फेज वी हैव टू यूज और विच टाइप ऑफ phase is occur during that communication. It may be in 45 degrees, 30 degrees, 90 degrees, okay, depending on that phase the carrier of a phase will be changing। okay, these are the, जैसे मैंने बताया था वही है, वही पॉइंट है। एनालॉग और डिजिटल कैरियर में एनालॉग फॉर्मेट रहता है, व्हाई नॉट डिजिटल कैरियर, तो इसमें भी ये है, एनालॉग मॉड्यूलेशन एनालॉग में ही रहता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन में डिजिटल इन्फॉर्मेशन रहती है, जो मैंने पहले ही बताया था वही पॉइंट से। these are the digital modulation, ASK, FSK, PSK, these are the types of modulation techniques। हाँ, देखो मैंने शिफ्ट किंग, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ASK है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग मीन्स क्या होता है, देखो ये मेरा वोल्टेज लॉजिक 1 को अपन क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट, लॉजिक 0 को अपन क्या बोलते हैं, -1 वोल्ट, राइट? जैसे ये मेरा क्या है, पॉजिटिव मीन्स क्या है, मेरा 1 वोल्ट है जिसको अपन बोलते हैं लॉजिक 1। ये मेरा माइनस माइनस भी बोल सकते हैं, 0 भी बोलते, लॉजिक 0 इसको अपन बोलते हैं -1। अब इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में जो 1 रहता है वो
कैरियर एज इट इज रहता है, बट यहाँ पे सप्रेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सप्रेस मीन्स लॉजिक जीरो हो रहा है। तो मेरा जो कैरियर जो रहेगा किसका, वेवफॉर्म का जो कैरियर रहेगा वो होता है, ऑफ भी होता है। जहाँ पे मुझे 1 मिलता है वहां पे मेरा सिग्नल क्या, कैरियर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, वहीं पे ही रहेगा। जहाँ पे मेरा सिग्नल या जहाँ पे -1 होगा या जीरो लॉजिक होगा, वहाँ 0 वोल्ट रहेगा, वहां पे ऑफ किंग रहेगा। ओ ओके, राइट, ऑन ऑफ किंग। दिस इज ऑन ऑफ किंग। देखो जहां जहां 1 है वहां वहां मुझे क्या मिल रहा है, कैरियर मिल रहा है। जहां जहां जीरो वहां पे सप्रेस हो रहा है। दिस इज अ एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, राइट। इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग क्या रहता है, जहां जहां मेरा 1 रहेगा, देखो जीरो में एज इट इज, जीरो में इसका जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में क्या रहता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, चेंज हो जाएंगे। बट किस में चेंज हो जाएंगे, जहां जहां मेरा लॉजिक 1 रहेगा या 1 वोल्ट रहेगा, वहीं पे क्या रहेंगे, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगे, चेंज हो जाएंगी। उसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। देखो यहाँ पे 0 0 है तो कुछ चेंजेस है क्या, नहीं है। पर जहां जहां 1 मेरा पल्स मिल रहा है वहां पे क्या हो रहा है, लॉजिक 1 मिल रहा है, वहां पे मेरा क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, राइट। तो वही उसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, ठीक है। बाद में फेस शिफ्ट किंग। फेस शिफ्ट किंग में वही है, मेरा क्या है, पल्स 1 0 है, लॉजिक 1 0 है, ये मेरा कैरियर है। तो कैरियर में देखो जहां जहां मुझे 1 to 0 या 0 to 1 मिल रहा है, पल्सेस जहाँ पे चेंज हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा फेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। देखो 1 से 0 या 0 to 1 जहाँ भी चेंजेस होते हैं, ट्रेलिंग या ट्रेलिंग में होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम पे, जहाँ पे 1 to 0 होता है या 0 to 1 तक होता है, तो उस टाइम पे मेरा कैरियर क्या हो जाएगा, द कैरियर ऑफ फेज विल बी चेंज। ओके, इट मे बी 40 डिग्री, इट मे बी 30 डिग्री। ओके, इसमें भी फेस शिफ्टिंग में बहुत सारे टाइप्स है। फॉर एग्जांपल फेस शिफ्ट हमेशा एम अरे कोडिंग में रहती है, ठीक है, एम अरे कोडिंग में वो। बाद में इसमें भी बहुत सारे फेस शिफ्टिंग रहती है, बाइनरी फेस शिफ्ट रहती है, क्यूपीएस के रहता है, क्वाड्रेचर फेस शिफ्टिंग रहती है, और 8 पीएस के रहती है। ये एम आर ए मीन्स क्या होता है, ये दीज आर द क्वाड्रेंट। जैसे अपन बोलते हैं ना 4 क्वाड्रेंट रहते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वैसे क्या रहता है, वो 4 क्वाड्रेंट में अपने को क्या मिलती है, फेस शिफ्टिंग रहती है। क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मैंने पहले बताया, फेस शिफ्ट क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री में क्या होता है, उसका जो फेज चेंज होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द फेज चेंज, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको क्या क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट उसको बोलते हैं एम आर ए कोडिंग, और उसको कॉन्स्टलेशन डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से बाइनरी शिफ्ट किंग रहता है, क्यूपीएस की रहता है, और 8 पीएस की भी रहता है। दिस इज अ बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, ठीक है। फेज चेंज, चेंज यहाँ पे 1 to 0 में क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, देखो 180 डिग्रीज में, ठीक है। दिस इज अ कॉन्स्टलेशन डायग्राम। बीपीएस के, क्यूपीएस के, पीएस के में क्या होता है, कॉन्स्टलेशन डायग्राम, उसको अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से बोले जाते हैं, 1 and 0, इसको बोलते हैं अपन कॉन्स्टलेशन डायग्राम। कॉन्स्टलेशन डायग्राम किस में यूज किया जाता है, अपने फेस शिफ्ट किंग में, बाइनरी शिफ्ट, बाइनरी सॉरी पीएस के में यूज किया जाता है। फिर बाइनरी में भी कॉन्स्टलेशन डायग्राम रहता है, यूपीएस के में भी होता है, 8 पीएस के में भी कॉन्स्टलेशन डायग्राम रहता है, ठीक है। दीज आर द सम टेक्निक्स यूपीएस के, these are the QPS के ट्रांसमीटर कॉन्स्टलेशन डायग्राम फॉर दैट QPS के क्वाड्रेचर में देखो 4 क्वाड्रेंट यूज होते हैं, और बीपीएस के में कितने होते हैं, 2 ही क्वाड्रेंट यूज होते हैं, 0 and 1। बट QPS के में क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट यूज होते हैं, 0 0 0 1 1 1 and 1 0, ठीक है। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, हमेशा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में अपन, these are the modulation techniques we have to use for transmitting of a signal. Okay, these are the whole syllabus or whole information regarding that communication electronics. Okay, in that communication electronics, analog analog communication information is included, and digital information is included. Okay,
but some digital communication, another part is also include for the for example, दिस इज अ कॉम्बिनेशन दिस इज अ सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट में का एक पार्ट है, बट वो अनदर डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट आता है। फॉर एग्जांपल अपना कौन सा लॉजिक गेट्स, देन शिफ्ट रजिस्टर, ओके, ये भी इसमें पार्ट होता है, बट वो उसमें आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ठीक है, बट इसमें उतना यूज नहीं होता है, बट इसमें ओनली यूज ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन एंड द डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा अलग पार्ट है, इसमें अपना कॉम्बिनेशनल लॉजिक, सिक्वेंशियल लॉजिक, ये पार्ट यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी मैंने पढ़ाया है तो आपको समझ में आया होगा। हेलो, Yes, sir. ठीक है, आज जितना पढ़ा है आपको समझ में आया है क्या? थोड़ा बहुत तो 30%, 40%? प्लीज रिप्लाई मी ऑल स्टूडेंट। समझ में आया क्या आपको? कुणाल, प्रियंका, आर्यन, Yes, sir. समझा. समझा ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। so Yes, we sir. have to, okay, so today we have stop here for the for that communication electronic gate lecture. Okay, thank you very much student for Thank you, attending sir. that Thank today's you for the lecture. session. Okay, thank you.